स्टूडेंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਵਰ ਟੂਡੇ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਆ ਟੌਪਿਕ ਔਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਬੇਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕੋਲਮ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸੇ ਅਗਰ R1 ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ R2 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ। ਫॉर एग्जांपल ਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਸਾਡੀ R2 ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਆ ਸਾਡੀ R1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ R1 ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਉਹ R2। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਲੁੱਕ ਹੇਅਰ, ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੇ 2x2 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? R2 ਬੇਟਾ ਆ ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਐਰੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? R2 ਵਿੱਚ। ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ? ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ? 5R2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ R2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਲੁੱਕ ਹੇਅਰ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R2 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ। ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 5 × 5 25, 7 × 5 35। ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। C1 ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ C2 ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਆ ਜਿਹੜੀ C2 ਹੈ C1 ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। 3 9 5। ਜਿਹੜੀ C1 ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? 2 1 4। C3 ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼। ਸਿਮਿਲਰਲੀ C1 ਨੂੰ C3 ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥਰਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ R2, ਆ ਐਰੋ ਪਾਇਆ, ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ R2 + R1, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? R2 ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਦਿਸ ਰੋ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜਡ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। 2 3 7 4 5 6 ਆ ਦੋ ਰੋਜ਼ R1 ਤੇ R3 ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? R2 ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ R2 ਤੇ? R2 + R1 ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? R1 ਤੇ R2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ? 2 ਨੂੰ 1 ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 3। 9 ਨੂੰ ਬੇਟਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 12। -4 ਨੂੰ ਬੇਟਾ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3। ਸੋ
इस ढंग नाल आपां बेटा ऑपरेशन लगा सकते हैं। एक इस ऑपरेशन नूं बेटा थोड़ा कंप्लीकेट करिए आपां से फिर मैट्रिक्स मैं 3/3 दी ही लै रहा। अगर बेटा मैं से इत्थे आना भी R1 नूं इंटरचेंज किया से R1 माइनस 2R2 बेटा ध्यान देने की लोड़ आ। इहदा मतलब इस केस विच किनू चेंज करना है आपां R1 नूं। R2 ते R3 चेंज नहीं होणगियां। किवें चेंज होणगियां? R2 नूं बेटा 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे। लुक हियर, इहदा मतलब आ मैट्रिक्स किहदे विच रिड्यूस हो जाएगी। देखो पहली गल ते R2 विच कोई फर्क नहीं पेगा, R3 विच कोई फर्क नहीं पेगा। हुण इहदा मतलब की है आ पूरी R1 चों माइनस करने ने R2 दे एलीमेंट कदों जदों पूरी R2 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर चुके होवांगे। सो इहदा मतलब सब तो पहला 1 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे 2 दे नाल। सो की आएगा R2 एलीमेंट किहदा लिख रहे बेटा, इहनूं होर आसान ढंग नाल बेटा मैं तुहानूं दसदा। देखो ऑपरेशन साडा की है R1 माइनस 2R2। ऑपरेशन लिख रहे हैं आपां बेटा। R1 का एलीमेंट की है इत्थे 2, R2 का एलीमेंट की है इत्थे 1। सो आंसर की आएगा इहदा 0। सिमिलरली नैक्सट की है R1 का एलीमेंट की है 3। नेक्स्ट ऑपरेशन की है 2, R2 का एलीमेंट की है बेटा 9। सो इहदा आंसर किन्ने आएगा 18 माइनस 3 माइनस 15। ओके नेक्स्ट की है बेटा R1 का नेक्स्ट एलिमेंट की है 7 माइनस 2, R2 का एलिमेंट की है बेटा -4। सो आंसर कितना आएगा 8 प्लस 7 प्लस 15। लुक हियर। सो आ जिहड़ी मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स विच रिड्यूस हो जाएगी आफ्टर दिस एलीमेंटरी ऑपरेशन। होपफुली तुहानूं पता लग रहा होगा एलीमेंटरी ऑपरेशन किवें लगा सकते हैं। सेम केस बेटा कॉलम वाइज भी आपां चल सकते हैं। किवें कॉलम वाइज चल सकते हैं से मैं ऑपरेशन लगाना C2 नूं इंटरचेंज किया आपां बेटा किवें चेंज किया C2 माइनस C1। सो इस केस विच आ मैट्रिक्स किवें रिड्यूस हो जाएगी। इहदे विच बेटा सिर्फ C2 चेंज होएगा C1 चेंज नहीं होएगा। 2 1 4 C3 भी चेंज नहीं होएगा 7 माइनस 4 6। C2 किवें चेंज होया C2 दे एलीमेंट विचों C1 दे एलीमेंट माइनस कर देने ने। मीन टू से 3 विचों की माइनस करांगे 2 की आएगा आंसर 1। 9 विचों 1 माइनस करांगे की आंसर आएगा 8। सिमिलरली इस 5 विचों 4 माइनस करांगे सो आंसर क्या आएगा 1। सो बेटा कापी पेन लो प्लीज़, इनू खुद प्रैक्टिस करो तुहानूं जल्दी समझ लगेगा। सो नैक्सट चलते हैं बेटा आपां। होपफुली तुहानूं पता लगा होएगा एलीमेंटरी ऑपरेशन किवें परफॉर्म किए जाते हैं। बेटा नैक्सट टॉपिक जिहड़ा साडा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आपां इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करने लई सब तो पहलां बेटा आपां नंबर सिस्टम की हैल्प लवांगे। इनवर्स फाइंड होने तो पहलां बेटा नंबर सिस्टम विच सानूं पता है आइडेंटिटी एलीमेंट का पता होना बहुत जरूरी है। सब तो पहलां आपां वेखांगे आइडेंटिटी एलीमेंट की हुंदा है। से मैं एक नंबर लेना हाँ 3। आइडेंटिटी एलीमेंट फाइंड करने लई मैनूं की चाहिदा है मैं 3 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करां कि आंसर 3 दा 3 आए। सो नैचुरली की आ रहा तुहाडे दिमाग 'च 1। सो 1 वर्क्स एज ए आइडेंटिटी एलीमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन इन रियल नंबर सिस्टम। सो सिमिलरली बेटा मैट्रिक्स विच किहड़ी आइडेंटिटी हुंदी आ आपां ए नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे आंसर ए दा ए आए। नैचुरली किन्ना करते हैं बेटा आई दे नाल। तो सानूं पता है वैसे भी आपां डेफिनेशन फस्ट वीडियो विच पढ़ी सीगी आई की हुंदी है इनू आइडेंटिटी एलीमेंट ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलिया जाता है। सो यूनिट मैट्रिक्स जां आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इन मैट्रिक्स आई वर्क्स एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ
ਹੁਣ फिर नंबर सिस्टम की गल कर रहे हैं। इनवर्स फाइंड करने सानू की चाहिए होंगे बेटा। हुण अगर मैं इनवर्स फाइंड करना है, मैं ओ एलीमेंट लभना है बेटा, मैं 3 नूं कितना मल्टीप्लाई करा, आंसर मेरा की आ जाए बेटा, आइडेंटिटी एलीमेंट 1। नंबर सिस्टम की गल कर रहे हैं पहला बेटा, मैट्रिक्स की नहीं। सो नैचुरली है कितना मल्टीप्लाई करांगे 1/3 ना। ਇਹਦਾ मतलब की है 3 का इनवर्स की होएगा, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ एलिमेंट ਲੱਭਿਆ 1/3। सो देयरफॉर इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3। ਇਹਦਾ मतलब ਆਹੋ ਹੀ ਗੱਲ बेटा ਆਪਾਂ ਹੁਣ मैट्रिक्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਂਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਇਡੈਂटिटी मैट्रिक्स आ जाए। सो ਜਿਹੜੀ भी मैट्रिक्स आएगी बेटा से बी ना मल्टीप्लाई करने दे नाल अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ जाता है, ਇਹਦਾ मतलब बी विल वर्क्स एज ए इनवर्स ऑफ ए। सो इनू मैं दोबारा लिख रहा बेटा, ध्यान देना। हुण नवें सिरों फिर दोबारा लिखदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ए नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा, आंसर आई आ जाए। जिहड़ी भी मैट्रिक्स आएगी बेटा उही की होएगा ए दा इनवर्स। सिमिलरली ਇਹਦਾ मतलब ए दा इनवर्स की होएगा बी। वाइस वर्सा भी ट्रू है, बी भी ए नाल मल्टीप्लाई हो के आई आ रहा है, ਇਹਦਾ मतलब बी दा भी इनवर्स की होएगा, दोनों एक दूजे दे इनवर्स होणगे। ध्यान देना बेटा। सो ਇਹਦਾ मतलब आ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। सो इनू हुण आपां दोबारा लिखते हैं जिस रूप च आपां इनू करना है। ਇਹਦਾ मतलब की है अगर किसी मैट्रिक्स नूं ਉਹਦੇ इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमेशा की आएगा आई। आ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इनू याद रखना। इस रिजल्ट नाल आपां सारे सवाल करांगे। सो देख लो, आ एक एग्जाम्पल ली है बेटा। इत्थे आपां ए है बी है, ए बी फाइंड किया, आंसर की आ गया आई। बी ए फाइंड किया, आंसर की आ गया आई। ਇਹਦਾ मतलब की है बी की होएगा ए दा इनवर्स, ਜਾਂ ਇਹਦਾ उल्ट भी ਆਪਾਂ इनवर्स भी कह सकते हैं, ए की होएगा बी दा इनवर्स। दोनों रिजल्ट पॉसीबल ने। ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ मेन सवालों ते आवांगे। ਜਿਹੜੇ मेन मकसद है साडा बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ सवाल आते हैं उधर शिफ्ट करांगे। आ बेटा एक्सरसाइज है, प्लीज़ ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट खिंच लो। NCERT बुक दी है आ एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट ने सवाल। पंजाब बोर्ड लिए 2x2 के बहुत इंपॉर्टेंट ने सवाल बेटा। तो CBSE आम तौर पर बेटा 6 नंबर का सवाल आता है, 3x3 का ही आता है, लेकिन पंजाब बोर्ड से बेटा सानू ज़्यादा 2x2 के ही सवाल चाहिए ने। आ बेटा उन्होंने आंसर तुम टैली कर सकते हो कि आंसर तुहाडे मैच करते कि नहीं करते। हुण सवाल करने किवें ने बेटा। बेटा साडा लाइन ऑफ एक्शन की होएगा, ध्यान देना। सानू ए मैट्रिक्स दे रखी होएगी, असीं हुणे रिजल्ट पढ़ के गए हैं। ए सानू पता है हमेशा आई इंटू ए दे इक्वल हुंदा, क्योंकि आई एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स वर्क करता है। जां कह लीए भी आई जस्ट लाइक ए 1, जिवें आप नंबर सिस्टम में 1 नूं जिन्ना मर्जी मल्टीप्लाई करिए नंबर में कोई फर्क नहीं पैंदा। सिमिलरली मैट्रिक्स नूं अगर आई ना मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण बेटा जिहड़े एलीमेंट्री ऑपरेशन पढ़े सीगे आपां वो सारे इत्थे लगावांगे ते की करांगे, ए नूं आई बनावांगे। जिहड़ा आई है किसी ना किसी मैट्रिक्स विच रिड्यूस होएगा जदों आपां एलीमेंट्री ऑपरेशन लगावांगे। हुणे लगा रहे हैं आपां बेटा, तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। आ ए एज इट इज़ तो आपां हुणे डेफिनेशन पढ़ी सीगी। अगर ए नूं किसी मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करते हैं, अगर साडे को आंसर आई आ जाता है, ਇਹਦਾ मतलब की है आ जिहड़ी मैट्रिक्स आ की होएगी ए दा इनवर्स होएगा, ए दा इनवर्स होएगा। सो बेटा ਇਹਦਾ मतलब की है एक बहुत इंपॉर्टेंट है टारगेट साडा जिहड़ा ए दे रखिया होगा उन्होंने आपां आई विच रिड्यूस करना है। आई दा मीन टू से अगर 2x2 का है बेटा आई भी की लवांगे 2x2 दी होएगी। अगर ए की है 3x3 का, ਇਹਦਾ मतलब आई भी की लवांगे आपां 3x3 दी। हुण बेटा इस विच एक
मान लो एक मैं कोई एग्जांपल लेना 2 1 3 आ बेटा एक मैट्रिक्स ਲਈ है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ आई ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ बेटा ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ बेटा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ रो वाइज ऑपरेशन लगाना चाहते हो ਜਾਂ कॉलम वाइज। सो अगर रो वाइज लगाते हो तो पाथ कुछ होर होएगा, अगर कॉलम वाइज लगाते हो तो साडा पाथ कुछ होर होएगा। बाय डिफॉल्ट बेटा ज़्यादातर आप रो वाइज ही लगाने। सब तो पहला बेटा मैं रो वाइज तुहानूं दसदा रो वाइज का पाथ की होएगा बेटा। सब तो पहला बेटा इस 2 नूं 1 करने की कोशिश करांगे। ਜਦੋਂ रो वाइज मैं किहदी गल कर रहा बेटा रो वाइज की। नैक्सट बेटा आप इस 1 नूं यूज करांगे इनू 0 बनाने वास्ते। सो बेटा एक एग्जांपल लेने से ए इत्थे कोई भी एलीमेंट दे रखे होणगे। एलीमेंट नूं बेटा आप जनरल एलीमेंट लेने चंगे रवांगे A11 से दैन A12 A21 इत्थे कोई भी एलीमेंट हो सकते हैं साडे को। सब तो बेटा पहला आप की काम करांगे A11 नूं 1 करांगे। आई बनाना है बेटा डैट मीनस सब तो पहला आप इस एलीमेंट नूं 1 बनावांगे बेटा। सब तो पहला हुण तुहानूं आ चूज करना पएगा तुसीं किहड़ा ऑपरेशन लगाउणा चाहुंदे हो, रो वाइज ऑपरेशन लगाना चाहुंदे हो कि कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाना चाहुंदे हो। बेटा अगर तुसीं रो वाइज ऑपरेशन लगाना चाहुंदे हो ध्यान देना सब तो पहला फिर पाथ की होएगा साडा ए नूं आई बनाउण लई सब तो पहला इस एलीमेंट नूं 1 करांगे फिर A21 नूं 0 करांगे हमेशा ऑलवेज। दैन A21 नूं 1 करांगे दैन आफ्टर A12 नूं 0 करांगे। सो पाथ की होया रो वाइज सब तो पहला इनू 1 करांगे दैन 0 दैन इनू 1 दैन इनू 0। अगर बेटा तुसीं रो वाइज ऑपरेशन लगा रहे हो अगर तुसीं सब तो पहला इनू 1 कर लिया इनू 0 कर लिया तो तुहाडा सवाल नहीं होएगा। सो इस पाथ नूं याद रखना। तो अगर तुसीं कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाउणा चाहुंदे हो इहली पाथ वखरा है कॉलम वाइज लई। कॉलम वाइज सब बेटा इनू 1 करांगे। अगर कॉलम वाइज लगाना चाहते हो फिर इनू 0 करोगे दैन A21 नूं सॉरी A22 नूं 1 करोगे दैन इनू 0 करोगे। बेटा आप पाथ तुहानूं फॉलो करना पैना बेटा। समझ लगेगी जदों आपां सवाल करांगे। हुणे आपां सवाल करन जा रहे हैं। चलो आ सवाल करते हैं बेटा। ओके NCERT का ही सवाल आ। इत्थे बेटा सानूं 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है। सब तो पहला आ रिजल्ट सानूं पता जिवें सानूं आपां हुणे गल करके गए सीगे A = IA। इत्थे बेटा A की वैल्यू शिफ्ट करनी है I बाय डिफॉल्ट उही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लैनी है जिस ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स है। नैक्सट A एज इट इज़ रखिया। हुण बेटा आ देखिया जे एलीमेंटरी ऑपरेशन लगा के आपां की काम किया बेटा इस ए नूं किहदे विच रिड्यूस किया आई दे विच। जदों आ आई विच रिड्यूस हो गया आ भी किसी ना जिहड़ा आई सीगा किसी होर मैट्रिक्स विच रिड्यूस हो गई। इहदा मतलब साडे को ए वाला की होएगा रिक्वायर्ड आंसर। हुण इस दौरान जिहड़े ऑपरेशन लगे साडे बेटा आ सारे एलीमेंटरी ऑपरेशन लगे ने। सो आपां एलीमेंटरी ऑपरेशन की हैल्प लैने आ इस ए नूं आई बनाने वास्ते। सो लैट्स स्टार्ट किवें आपां एलीमेंटरी ऑपरेशन लगाया। हुण बेटा हुण जिहड़ी गल कीती सी कि इस ए नूं आई विच रिड्यूस कीता है। हुण इत्थे बेटा सब नूं इंपोर्टेंट गल है कि तुसीं ऑपरेशन रो वाइज लगांदे हो कि कॉलम वाइज लगांदे हो। अगर बेटा तुसीं ऑपरेशन रो वाइज लगा रहे हो तो तुहानूं एक प्रॉपर पाथ फॉलो करना पेगा। वो पाथ की है 2x2 के केस में फिर साढ़े को आ मैट्रिक्स है 2x2 की। सब तो पहला बेटा इस एलीमेंट नूं 1 करांगे दैन इस एलीमेंट नूं 0 करांगे
दैन 7 ਨੂੰ बेटा 1 करांगे, दैन लास्ट एलीमेंट जिहड़ा बच गया साडे कोल 3 इनू 0 करांगे। प्लीज़ ध्यान दो, सब तो फिर मैं रिपीट कर रहा, सब तो पहला A11 ਨੂੰ 1 करांगे, दैन इनू 0 करांगे, एलीमेंट्री ऑपरेशन लगा के करांगे, दैन इनू 1 करांगे, इनू 0 करांगे अगर आपां रो वाइज ऑपरेशन लगा रहे हाँ। ਇਹਦਾ उल्टा बेटा अगर आपां कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाना चाहुंदे हां, अगर आपां कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाना चाहुंदे हां फिर सानू उल्टा काम करना पेगा। सब तो पहला बेटा सानू इस एलीमेंट नू 1 करना पेगा, फिर इसनू 0, फिर इनू 1 करना पेगा, फिर इनू 0, एहो पाथ फॉलो करना पेगा। 1 0 दैन 1 दैन 0। अगर बेटा आपां रो वाइज लगा रहे हाँ तो पाथ की होएगा, सब तो पहला 1 दैन 0 दैन 1 दैन 0। प्लीज़ आप पाथ तुहानू फॉलो करना पैना है। अगर आप पाथ फॉलो नहीं करते तो सवाल नहीं होएगा। आहो ही मेन है पॉइंट इस दे विच जी। हुण बेटा देखिया जे ध्यान नाल किवें आपां काम कीता। बेटा ए सानू दे रखिया, रिजल्ट आपां जानते हर सवाल दे विच आहो काम करांगे। ए दी वैल्यू सबस्टिट्यूट कीती, आई दी वैल्यू सबस्टिट्यूट कीती। हुण बेटा सब तो पहला 2 नू 1 बनाउणा है, 2 नू 1 बनाउणा है। सो सब तो पहला बेटा देखो आपां की काम कीता, R1 नू इंटरचेंज कीता R2 दे नाल। क्यों इंटरचेंज किया? ताकि सानू सवाल करने विच आसानी हो जाए। हुण 5 उत्ते चला गया, हुण बेटा 5 नू 1 बनावांगे। 5 नू 1 किवें बनावांगे बेटा? नैचुरली है बेटा, देखो आ सवाल करने सानू बेटा आपां अगर साडे दिमाग विच की सोच चाहिदी है, जिवें आपां लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल नहीं करदे हुंदे, से -y इज इक्वल टू से 3, से नैक्सट आपां कहने x प्लस y इज इक्वल टू 5, ਜਾਂ होर भी इत्थे एलीमेंट लै लैंदे आ। से आपां कोफिशिएंट इक्वल करदे सीगे, इनू की काम करदे सीगे 2 नू 2 नाल मल्टीप्लाई करदे सीगे सारी इक्वेशन नू, दैन कोफिशिएंट इक्वल करके x नू कट कर दिंदे सीगे, जां y नू y दे कोफिशिएंट इक्वल करदे सीगे। ਉਹੀ सोच बेटा लैके आनी आ आपां, उसे सोच नाल सारे साडे सवाल आ होणगे। किवें होणगे बेटा? आ देखिया जे, आ पूरी साडी फर्स्ट रो है, आ पूरी साडी की है सैकेंड रो है। सो आ साडी सिमिलरली फर्स्ट रो सैकेंड रो। सो R1 की होएगी फर्स्ट रो सैकेंड रो। हुण बेटा 5 नू 1 करना है, डैट मीनस 5 किस रो च आ रहा है? R1 दे विच आ रहा बेटा। R1 नू चेंज करांगे, R2 नू कोई चेंज नहीं करांगे। 5 1 किवें होएगा? जदों R2 नू 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे ते R1 विचों माइनस कर देवांगे। ध्यान दो। सो ਇਹਦਾ मतलब आ ऑपरेशन की हो गया, R1 विचों की माइनस किया 2R2, तो नैचुरली है आ 5 की बन जाएगा बेटा 1। आ देखो इत्थे भी आहो ऑपरेशन लिखिया होया। सो ਇਹਦਾ मतलब की है 5 किवें रिड्यूस हो गया बेटा? R1 का एलीमेंट की है 5, 2 R2 का एलीमेंट की है 2, आंसर की आ गया बेटा साडे को 1। देन नेक्स्ट एलिमेंट की है बेटा 7, 7 किस रिड्यूस हो जाएगा? 7 माइनस 2, R2 का की एलिमेंट है नेक्स्ट 3, सो की आएगा 7 माइनस 6 के बराबर आ जाएगा बेटा 1 दे। सो लुक हियर 1 आ गया। नेक्स्ट की है एलिमेंट साडे को 0। प्लीज़ कापी पेन लो, इनू नाल नाल साइड ते रफ काम जरूर करो पहला बेटा, सीधे सवाल नहीं होणगे। सो 0 किच रिड्यूस होएगा? 0 माइनस 2 एलिमेंट की है 1, सो आंसर की आ गया बेटा -2। लुक हियर नेक्स्ट एलिमेंट की है बेटा 1, आ किच रिड्यूस होएगा? 1 माइनस 2 इंटू 0, सो आंसर की आ गया बेटा 1। सो बेटा आ काम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड ते जरूर करो। जो तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तुसीं सीधा भी कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट 1 आ चुका। नेक्स्ट टारगेट की है? इस 2 नू
जीरो बनाउण दा। प्लीज़ इहदे वल ध्यान दो। ओके, हुण बेटा साडा पूरा ध्यान इस 2 वाल चाहिदा है। इस 2 नूं जीरो किवें बना सकदे हां, ध्यान दो। हुण आ पूरी साडी R2 है, इहदा मतलब आपां R2 नूं ही चेंज करांगे। चेंज किवें आएगी? हुण R2 विचों की माइनस करांगे? R1 माइनस करांगे बेटा। R1 किवें माइनस करांगे? अगर बेटा R1 सिंपल माइनस करदे हां, आ जीरो नहीं बनेगा। इहदा मतलब की है आपां 2R1 मतलब R1 नूं सब तो पहलां 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे, फिर R2 चों माइनस करांगे। सो ऑपरेशन लगावांगे। देखो R2 का एलीमेंट 2 है, नैचुरली ऑपरेशन लगाया ही इस ढंग नाल है। R2 का एलीमेंट 2 है, R1 का फर्स्ट एलीमेंट की है 1 है, आंसर की आ गया साडे को 0। लुक हियर। नैक्सट R2 का एलीमेंट की है 3, R2 का एलीमेंट 3 सेम रहेगा 2। सिमिलरली साडे को R1 का एलीमेंट की है नैक्सट, दिस इज 1। सो आंसर कितना आ गया साडे को 1। ओके, देन लुक हियर। नेक्स्ट एलिमेंट की है 5, 5 के च रिड्यूस होएगा 5 माइनस 2 की है साडे को 2, आंसर की आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट की है बेटा साडे को 1, आ के च रिड्यूस होएगा 1, 1 माइनस 2 माइनस 2 किहदे इक्वल आएगा 5 दे बेटा। नेक्स्ट एलिमेंट की है साडे को 0, आ के च रिड्यूस होएगा 0 माइनस 2, R1 का एलिमेंट की है बेटा 1, तो आंसर कितना आया बेटा -2। हुण बेटा दो काम हो गए साडे को, एक तो आ भी 1 हो गया, आ भी 0। नैक्सट टारगेट की है इनू 1 बनाना। बाय डिफॉल्ट ही बेटा इत्थे 1 आ चुका, बाय डिफॉल्ट इत्थे 1 आ चुका, एक स्टैप साडा बच गया। मान लो इत्थे 1 ना आंदा, मान लो इत्थे 5 आ जांदा, की आ जांदा 5। ਇਹਦਾ मतलब इस 5 ਨੂੰ फिर 1 बनाना पैना सीगा। किवें बनाना पैना सीगा? ਇਹਦਾ मतलब की सीगा सानू R2 ਨੂੰ चेंज करना पैना सीगा 1/5 R2। ਇਹਦਾ मतलब R2 ਨੂੰ सानू 1/5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना पैना सीगा, ਜਾਂ R2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 5 ਨਾਲ डिवाइड करना पैना सीगा। ਤਾਂ ਆ 5 ਨੇ ਕੀ बन जाना सीगा 1, ठीक है। इन्ने भी की बन जाना सीगा 1, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ आ जाना सीगा 2/5। बट इस केस विच बेटा साडे को पहला ही ऑलरेडी साडे को इत्थे की आ गया, साडे को 1 ऑलरेडी आ चुका है। सो आ साडा स्टैप बच गया। हुण नैक्सट टारगेट की है, इनू इस एलीमेंट नू 0 बनाना। सो इस 1 नू 0 बनावांगे ताकि इत्थे साडे को की आ जाए आई आ जाए। सो बेटा इनू बनाउण लई की काम करांगे? बहुत सिंपल है इत्थे ते हुण। सो की काम करांगे? इस 1 नू आपां बेटा 0 बनाना है। आ किस रो च आ रहा है? R2 सॉरी आ बेटा किस रो च आ रहा है? R1 विच आ रहा है। सो सिंपल बेटा की काम करांगे? R1 विचों R2 माइनस करांगे, R1 माइनस R2। सो की आएगा आंसर बेटा? लुक हियर। 1 चो बेटा तुसीं देख सकते हो, इस 1 चो 0 घटावांगे 1 ही रहेगा, इस विच कोई चेंज नहीं होएगा। इस 1 विचों 1 माइनस करांगे, आंसर 0 आ जाएगा बेटा। हुण इत्थे बेटा ऑपरेशन ध्यान नाल लगाउणे। नैक्सट R1 का एलीमेंट की है -2 किस च चेंज होएगा? R1 का एलीमेंट -2, R2 का की आ गया बेटा 5। सो कितना आंसर आएगा -7। सिर्फ R1 में चेंज होएगा बेटा, ध्यान दो, R2 विच कोई चेंज नहीं आएगा। सो नैक्सट एलीमेंट की है बेटा 1, आ किस विच चेंज आया 1 माइनस 2। सो आंसर कितना आ गया बेटा? लुक हियर 3। सो आ ऑपरेशन दे अकॉर्डिंग ही चलना है। साइड से रफ काम जरूर करो बेटा, खुद प्रैक्टिस करो, सवाल खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही पता लगेगा। सो बेटा हुण ध्यान दो, इत्थे साडे को पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है 1 0 1 0। सो इसे पास ना चलना है रो वाइज बेटा। अगर इस पास ना चले तो बेटा सवाल नहीं होएगा।
ओके सो बेटा देखो हुण साडे को आ चुका है, आ आई बन चुका सा बेटा। सो इसनूं आपां लिख सकते हैं आपां ए इंटू एक मैट्रिक्स में बेटा किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर अगर सानू आई आ रहा है, अगर बेटा इनू लिख सकते हैं हाँ आप प्रूव कर चुके हैं, यदा मतलब की होएगा ए इनवर्स एलिमेंट कि मैट्रिक्स आएगी दिस वन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर -753 -2। बेटा आ सवाल करके गए सी आपां हुणे। बेटा इत्थे ध्यान देना, आ जरूरी नहीं सीगा भी इत्थे इंटरचेंज करना ही करना है, जरूरी नहीं है दो बच्चों के सेम ऑपरेशन होण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ है यूनीक ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ मर्जी ऑपरेशन लगा लो, अगर ਤੁਸੀਂ ट्रांसफॉर्मेशन सही लगा रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ कैलकुलेशन सही आ, इनवर्स हमेशा सेम ही आएगा। ਇੱਥੇ बेटा होर ढंग ਨਾਲ भी सवाल किया जा सकता ਸੀਗਾ, इस 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डायरैक्टली भी 1 कर सकते ਸੀਗੇ। ਕਿਵੇਂ कर सकते ਸੀਗੇ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ R1 ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੇਂਜ कर सकते ਸੀਗੇ 3R1 -R2 मीन टू से इस 2 ਨੂੰ 6 बना लेंगे, ठीक है ना जी। इस अगर इस पूरी R1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दे तो आ 2 6 बन जाना सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 माइनस कर दे नैचुरली 1 आ जाना सीगा। हाँ जी बेटा इत्थे बच्चे कन्फ्यूज होंगे आ बेटा, बच्चे आंदे सर जी इत्थे 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया है, बाकी आ एलीमेंट क्यों नहीं चेंज हुए, बाकी एलीमेंट चेंज क्यों नहीं हुए। बेटा जेडे आ स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट ऑपरेशन विच ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जस्ट इन्हां नूं ऑपरेशन विच ही मल्टीप्लाई करना सीगा। सो बेटा इस ढंग नाल भी इनू 1 बना सकते सीगे, बाकी दे एलीमेंट फिर उस ढंग नाल इनू नैक्सट नूं 0 करना सीगा, जो भी एलीमेंट आंदे। इत्थे 5 आना सीगा नैचुरली, इत्थे 7 आना सीगा, आ एलीमेंट चेंज हो जाने सीगे। हुण 5 नूं 0 करना सीगा, किवें करना सीगा फिर R2 नूं चेंज कर देंदे आपां R2 -5R1। बेटा खुद प्रैक्टिस करोगे नाल दे नाल तां पता लगेगा। जोड़ी भी तुहाडे कोल बुक है ਉਹਦੀਆਂ कुछ एग्जाम्पल्स होणगियां बेटा सॉल्व कीतियां होणगियां, उत्थों भी तुसीं हैल्प लो। बेटा आ सवाल है प्लीज़ इनू सॉल्व करने की कोशिश करिया जे, तुसीं खुद सॉल्व करो, देखो आंसर आंदा कि नहीं आंदा, उसी ढंग ना करोगे तुसीं। सो रो वाइज ऑपरेशन लगाए ने, प्लीज़ ध्यान देना। इत्थे ए आएगा प्ले नाल मल्टीप्लाई होएगा बेटा, ध्यान देना इत्थे ए मल्टीप्लाई होएगा। प्लीज़ कोशिश करियो आ सवाल करने की। नैक्सट है बेटा सवाल, हुण बेटा 3/3 का सवाल है, इस लिए सानू एक पर्टिकुलर पाथ फिर फॉलो करना पएगा। अगर रो वाइज की गल कर रहे हैं, पाथ की हुंदा है, सब तो पहला बेटा इनू 1 करांगे, इनू 0 बनावांगे, इनू 0 बनावांगे, आ पूरी कॉलम नू कंप्लीट करके रो वाइज की गल कर रहे हैं। दैन इनू 1 करांगे, फिर इनू 0 करांगे, इनू 0 करांगे, दैन इनू 1 करांगे, इनू 0 करांगे, इनू 0 करांगे। बेटा इस पाथ नू फॉलो करो तो डेफिनेटली बेटा तुहाडा सवाल होएगा। अगर बेटा आपां कॉलम वाइज की गल करिए, वह पाथ हुंदा है सब तो पहला इनू 1 करांगे, इनू 0 करांगे, इनू 0 करांगे, दैन इनू 1 करांगे, इनू 0 करांगे, इनू 0 करांगे, दैन इनू 1 करांगे, इनू 0 करांगे, इनू 0 करांगे जी। आ नोट करो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस वन फॉर रो वाइज, दिस वन इज फॉर कॉलम वाइज। सवाल तुहाडे सामने है बेटा, 1 ऑलरेडी हैगा, इत्थे साडा स्टैप बच गया, इत्थे भी ऑलरेडी 0 हैगा, साडा फिर स्टैप बच गया। जस्ट R2 नूं आपां 0 करांगे, किवें करांगे, R1 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कीता ते R2 विचों माइनस किया। हुण तुसीं देख सकते हो ऑपरेशन साइड ते रफ काम जरूर करते जाओ, जिस तरह मैं तुहानूं नोट डाउन करवाया सीगा। दैन बेटा लुक हेयर, इस 7 नूं बेटा 1 किया है, किवें किया है बेटा, कोशिश करो 7 नूं आपां डिवाइड भी कर सकते सीगे, लेकिन बेटा कोशिश करो
इवें कर सकते सीगे, लेकिन कोशिश करो अगर डिवीजन नू अवॉइड कर सको, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਵੋਇਡ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 1 ਕਰਾਂਗੇ? 2 ਨੂੰ ਬੇਟਾ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 7 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ 1 ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਕ ਹੈ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਫ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ 1 ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੁੱਕ ਹੈ 0 ਬਣਾਇਆ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ। ਬਾय डिफॉल्ट बेटा आ साढ़े को 0 0 आ गए। सो प्लीज़ सवाल करने की कोशिश करा जे। तुहाडी बुक्स ते एग्जाम्पल भी जरूर होणगियां, तुहानूं एलीमेंटरी ऑपरेशंस भी पता लग गए ने। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बेटा। सो प्लीज़ पंजाब बोर्ड वालियां ने बेटा 2x2 दे सारे सवाल करने ने। एक बेटा मैं तुहानूं जरूर इत्थे कहना चाहांगा, अगर तुहानूं मान लो बोर्ड के पेपरां विच आ 3x3 का सवाल आ जाता है, इसनूं बेटा अगर तुहाडे कोल कोई अल्टरनेटिव हैगा, कोई चॉइस हैगी, कोशिश करो 3x3 के सवाल नूं स्किप करन दी, क्योंकि आ काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। अगर मैं इनू कराउण दी कोशिश करांगा सारे सवाल नूं, शायद मैनूं ही तुहानूं समझाउंदिਆਂ 15 ਤੋਂ 20 मिनट लग जाणगे। सो कोशिश करो 3x3 का सवाल, अगर तुसी अगर अल्टरनेटिव हैगा दूसरा अल्टरनेटिव चूज करो। अगर तुहानूं कोई चॉइस नहीं, तुहानूं करना ही पैंदा है, तो फिर एट द एंड करना है। पहला कभी भी आ 3x3 का सवाल स्टार्ट नहीं करना जदों सारा पेपर हो जाए। सो एट द एंड तुसी 3x3 का सवाल करना है बेटा। कोई सवाल जिहड़े तुहानूं शेयर कीते ने 3.4 एक्सरसाइज विचों, अगर कोई सवाल नहीं निकल रहा तुहाडे कोल, प्लीज़ मैनूं दसो, तुहानूं मैं WhatsApp ग्रुप ते भेज देवांगा। सो होपफुली तुहानूं पता लगा होएगा। थोड़ा जिहा डिफिकल्ट है टॉपिक, लेकिन इन्ना भी औखा नहीं जिहड़ा ना हो सके। इस सवालों की बेटा प्रैक्टिस ही एक साधन है जिन्ना तुसीं इनू कर सकते हो। सो बेटा वर्क हार्ड, प्रैक्टिस जिन्नी ज़्यादा करो उन्ना ही चंगा है। सो अगर तुहानूं समझ लगी है, सो इस वीडियो नू लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करो, ताकि बाकी बच्चे भी इसदा फ़ायदा उठा सकन। सो धन्नवाद बेटा।